variation of g with depth d below earth surface, below earth surface. देखिए बच्चे, this is the earth and earth has radius r. Earth has radius r. From the surface we move d distance downward. We move d distance downward. Now we have to find the gravity at this point. We have to find the gravity at this point B. ठीक है, तो the mass of the entire earth is m. ये स्मॉल r हो गया, ठीक है. द एंटायर डिस्टेंस इज रेडियस एंड द ये आ जाएगा बच्चे स्मॉल r. तो बच्चे what is the gravity at A? A is at the surface, the gravity at A is g. It is equal to gm by radius का square. Gravity at B is the gravity at depth d. Gravity at B is the gravity at depth d. It is equal to gm by distance का square. What is the distance of the point B from the center of the earth? Small r. तो gm by small r का square. बट मास का यहां पर अंतर होगा. When I am studying the point A, तो इसका जो स्फीयर था इसके अंदर पूरा मास आ रहा था अर्थ का, लेकिन B पॉइंट का जो स्फीयर है इसके अंदर अर्थ का पूरा मास नहीं आ रहा. It includes the mass m1 only. It has mass m1 only. ठीक है, कुछ इस टोटल मास का कुछ हिस्सा इस स्फीयर के अंदर इंक्लूड हो रहा है. So we have to write it here m1. What can you write to mass? Density into volume. So you put it here as density into volume. What is the volume of the complete sphere? 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube upon with r square. It will become 4 gd by 3 pi r. It will become 4 gd by 3 pi r. Same you do here. Put density, mass as density into volume. Put mass as density into volume. So it will become density into 4 pi r cube upon with 3 r square. इससे ये कट जाएगा. It will become 4 gd by pi r by 3. Let it to be equation 1. Let it to be equation 2. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. तो बच्चे gd बाय g विल बी इक्वल टू, आप देखेंगे बच्चे 4 gd पाई विद 3 3 तो कट जाएंगे. ओनली द रेडियस विल बी लेफ्ट, जो नहीं कटेगा. ओनली द r विल बी देयर, जो कट नहीं होगा, क्योंकि एक में स्मॉल r है और एक में कैपिटल R है. So it will remain small r by capital R. Can you find the relation in the small r and capital R in the figure? The complete radius is capital R. Capital R is equal to small r plus d. So small r is r minus d. Small r is r minus d. ठीक है, put it here. So gd is equal to g. Small r is r minus d from figure. ये मैं अपने कैसे करता हूँ, फिगर में मुझे दिखाई दे रहा है r माइनस डी बाय आर. आप इन्हें अलग अलग कर लीजिए तो gd विल बिकम g1 माइनस डी बाय आर. gd विल बिकम g1 माइनस डी बाय आर. दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी एट डेप्थ. तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम डेप्थ में मूव करते हैं. अगर हम सेंटर पे चले गए तो सेंटर में जाके डी आर के बराबर हो जाता है. तो जीडी कितना हो जाएगा, g1 माइनस आर बाय आर, डेट इज इक्वल टू 0. मतलब अगर हम अर्थ को खोते खोते अर्थ के सेंटर तक चले जाएंगे तो एट दैट पॉइंट द ग्रेविटी विल बी 0. एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी विल ड्रॉप टू 0.
हाँ, at center of earth gravity is zero. Anybody, any doubt in the derivation can ask. हाँ बच्चे, plot the graph showing variation of small g with r distance from center of earth. From center of earth. आप देखिए बच्चे, this is g versus r, where the gravity is maximum at the surface of earth. When the distance is equal to the radius of earth, then the gravity has the maximum value 9.8. Gravity has the maximum value 9.8 at the surface of earth. ठीक है, अगर मैं उससे नीचे जाता हूं या ऊपर जाता हूं तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है. Gravity at depth d is g1 minus g by r, and gravity at height h is g r by r plus h का होल स्क्वायर. r अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर. तो बच्चे, अगर मैं सेंटर सरफेस से डेप्थ की तरफ मूव करता हूं तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, और अगर हाइट की तरफ मूव करूंगा तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी. बट यहां पर स्क्वायर आ रहा था तो ग्राफ पैराबोलिक टाइप से हाइपरबोला टाइप चला गया. ठीक है, यहां पर दोनों की पावर 1 चल रही थी. जब पावर 1 होती है तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में. लेकिन सरफेस से जैसे जैसे मैं किसी भी तरफ, चाहे डेप्थ में या हाइट में जाऊंगा, ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज करेगी. ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज करेगी. Variation of g because of the shape of earth. Variation of g due to shape of earth. Variation of g due to shape of earth. देखिए बच्चे, earth is not perfect sphere. Earth's shape is like geoid, like this.
So you can see that the equator is greater than the polar. So radius of equator and this is the radius of polar. This is equator, this is polar. ठीक है? So you can see in the figure that what will be the gravity at equator? Gm by Re square. And what is the gravity at pole? Gm by Rp square. Clear? Gravity at equator is Gm by Re square. Gravity at pole is Gm by Rp square. So बच्चे, you can see in the figure that Re is greater than the Rp. इक्वेटर का डिस्टेंस पोल के डिस्टेंस से ज्यादा है. So gravity at equator is less than the gravity at pole. जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी. तो पोल पर अगर अब इस पे वो आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है. A stone weighs 5 kg at equator. What will be whether its weight increase or decrease at pole? Whether its weight increase or decrease at equator? Its mass increase or decrease at pole. हाँ, तो बच्चे मास हमेशा क्या रहता है? सेम. तो मास हमेशा सेम ही रहेगा. तो मास क्या रहेगा बच्चे? सेम. क्वेश्चन वही तो आ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. Where the weight of 5 kg stone will be more, at equator or pole? Where the weight of 5 kg potato, 5 kg stone will be more, at pole or at equator? तो बच्चे देखिए वेट क्या होता है? mg. तो ग्रेविटी कहां ज्यादा है? पोल पर. पोल का डिस्टेंस कम होने की वजह से पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है. ठीक है, और तो वेट भी पोल पर ज्यादा आएगा. ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर. तो वेट एट पोल इज ग्रेटर देन द वेट एट इक्वेटर. ठीक है, वेट एट पोल इज ग्रेटर देन द वेट एट इक्वेटर. ठीक है, पोल का वेट, पोल पे किसी चीज का वेट इक्वेटर से ज्यादा होता है. ठीक है, पोल पर सबसे ज्यादा होगा बच्चे. हाँ, बराबर होगा. ठीक है, देखिए बच्चे, अब बॉडी वेट 63 न्यूटन एट सरफेस ऑफ अर्थ. अब बॉडी वेट्स 63 Newton at surface of earth. What will be its weight? What will be its weight at height half of radius of earth? At height
हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए बच्चे, व्हाट्स द क्वेश्चन, that if a person is standing at the surface, then its weight is, gravity is here g, and at this point where the height is equal to r by 2, gravity is gh, gravity is changing। ठीक है, तो a पर वेट कितना होगा बच्चे, mg, b पर वेट कितना होगा, m इंटू जी एच। जी आपको 63 गिवन था, a पर वेट mg है, डेट इज इक्वल टू 63 न्यूटन। ठीक है, b पर वेट होगा mgh, क्योंकि आप हाइट पे चले गए, एंड gh का फॉर्मूला क्या था बच्चे, g r बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, दैट वी हैव डिराइव्ड इन द प्रीवियस क्लास। ग्रेविटी एट हाइट h होती है r बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू m g, हियर h इज गिवन टू यू r बाय 2, बस सॉल्व कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 mg हमारा 63 है, तो वेट एट बी आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 2r बाय 3r का होल स्क्वायर, टेकिंग एलसीएम 2r बाय 3r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 63 इंटू में 4 बाय 9, 28 न्यूटन। यस बच्चे बोलिए, कोई डाउट? हाँ, 28 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बच्चे, kgf is the force applied by 1 kg mass। kgf क्या होता है, फोर्स बाय 1 kg मास। तो 1 kg की बॉडी अगर जमीन पे खड़ी है तो कितना फोर्स लगाएगी, mg, यानी कि 10 न्यूटन, तो 1 kgf 10 न्यूटन के इक्वल होता है। A body weighs 63 न्यूटन एट सरफेस ऑफ अर्थ। समझ आ गया बच्चे वाला क्वेश्चन? ग्रेविटी एट डेप्थ तो ये था ना, g1 माइनस डी बाई आर। Now, बच्चे there is a question in the back exercise। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चे? Anybody having any doubt can ask? Okay. देखिए बच्चे, in the back exercise there is a question in the NCERT that this is a statement is given, mass of earth is given in that question and mass of sun is given in that question. A satellite has to be launched from earth to Mars। A satellite is launched from earth to sun। अर्थ से सन की तरफ एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। वेयर इट विल कम टू रेस्ट इन बिटवीन, वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑन इट बिकम जीरो। इफ अ सैटेलाइट इज लॉन्च फ्रॉम अर्थ टू सन, where find where the gravitational force on it becomes zero। आपको क्वेश्चन जी कहां से आएगी, स्मॉल जी है कैपिटल जी? नहीं बच्चे, इसमें आपको क्या दे रखा है, बस मास ऑफ अर्थ गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ सन गिवन है, बस दो चीजें ही गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, दो ही चीजें गिवन है। मास ऑफ अर्थ ले लो 6 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ सन ले लीजिए 3 इंटू 10⁻30 kg। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। तो बच्चे, दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन। The distance between the earth center and sun center is 1 AU।
1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10⁻11 मीटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां से एक सैटेलाइट लॉन्च की है, सैटेलाइट का मास मैंने मान लिया स्मॉल m, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ सन। रास्ते में सपोज ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गई, जिसका अर्थ से डिस्टेंस कितना था x, तो यहां से कितना बचेगा बच्चे, लेट इट टू बी x इंटू 10⁻11 मीटर, ये कितना बचेगा 1.5 माइनस एक्स इंटू 10⁻11 मीटर। समझा नहीं है? ये रैंडमली पी, ये ऐसा पॉइंट है पी जहां पर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो चुका है जहां पर इस सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो चुका है, तो इसका अर्थ से दूरी था x इंटू 10⁻11 मीटर, तो सन से कितना बचेगा 1.5 इंटू माइनस एक्स इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स 0 क्यों हुआ होगा, इस पे ग्रेविटेशन, ये सपोज सैटेलाइट थी है ना, ये सैटेलाइट है ना, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 क्यों हुआ होगा, क्योंकि सैटेलाइट को अर्थ भी खींच रही होगी और सन भी खींच रहा होगा, सैटेलाइट को अर्थ भी खींच रही होगी और सन भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। फॉर नेट फोर्स टू बी है, फॉर नेट फोर्स टू बी 0, फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू सन। अब इस पॉइंट पर अर्थ और सन के बीच में कितना फोर्स है, जी m1 m2 बाय r, डिस्टेंस इज x इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। ठीक है, एंड फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू सन कितना है बच्चे, जी m1 m2 बाय 1.5 माइनस एक्स इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कैपिटल जी से कैपिटल जी कट गया, मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कट गया, 10⁻11 से 10⁻11 कट गया तो बचा कितना बच्चे, me बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ms बाय 1.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। me पता है, ms पता है, सॉल्व फॉर x, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका स्क्वायर मत खोल देना, इसका स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ये बन जाएगा रूट एम ई बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एम एस बाय 1.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। एम ई कितना था, रूट में 6 इंटू 10⁻24 बाय एक्स इज इक्वल टू रूट एम एस कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू 10⁻30 अपॉन में 1.5 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये रूट 3 से ये रूट 2, ये रूट 2 बचेगा, ये बचेगा रूट 2 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू रूट 10⁻15 अपॉन एक्स 1.5 माइनस एक्स, ये 10⁻3 बचेगा, रूट 2 इंटू 1.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10⁻3 एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। इस इक्वेशन से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ठीक है, सॉल्व इट फॉर एक्स। एनीबॉडी एनी डाउट कैन आस्क? क्लियर है बच्चे? अक्षिता समझ आ गया? ठीक, सौम्या ठीक है।
ये सोचे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चे, सपोज ये सन है, ये लास्ट प्लैनेट जिसको अट्रैक्ट करे, ड्वार्फ प्लैनेट है जो भी है, वो प्लूटो है। इसके पीछे कोई प्लैनेट है या नहीं, पता नहीं, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं है कि सन के चारों तरफ अल्फा सेंचुरी स्टार भी घूम रहे हैं, या सारे स्टार सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन का फोर्स एक लिमिट के बाद जीरो हो जा रहा है। सन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक लिमिट के बाद कितना हो जाता है बच्चे? जीरो। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, प्लूटो का डिस्टेंस कई हजार किलोमीटर है ना। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? हर मास के चारों तरफ एक ऐसी जगह होती है जहां तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उसके बाहर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यहां पर 1 kg का मास रखूं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर देखिए, अगर मैं 1 kg का मास रखता हूं P1 पॉइंट पर, तो ये इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसकी रेंज के बाहर चला गया। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज के अंदर एक 1 kg का मास एज्यूम करूं कि रखा हुआ है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जिस रीजन के अंदर अगर मैं टेस्ट मास यानी कि 1 kg मास को रखूं तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द रीजन अराउंड अ टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब होता है 1 kg मास। इट इज द रीजन अराउंड अ टेस्ट मास where a region around a mass in which if a test mass is placed, if a test mass is placed, then it experiences force of attraction. समझ आया नहीं है? Then it experiences force of attraction. एक टर्म होती है बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक टर्म होती है बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंबल होता है ई, वेक्टर ई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ नहीं है बच्चे कि अगर ये एक m1 मास है, ये m2 मास है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, देन आई नो कि यहां पर फोर्स जो होगा वो gm1m2/r² है ना। लेकिन सेम कंडीशन है, लेकिन m2 नहीं है। मुझे यहां पर फील्ड निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी होती है वहां पर कितने केजी का मास एज्यूम कर लेते हैं? 1 kg। होता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं। Here we will assume a 1 kg mass to be present. Here we will assume the gravity 1 kg mass to be present. अगर मैं 1 kg मास होता तो उसमें जो फोर्स लगता उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कि ये जो यहाँ पर एक मास था, इसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड थी, उसके अंदर अगर मैं किसी पॉइंट पे 1 kg का मास रख के देखूं तो जितनी फोर्स से वो मास की तरफ अट्रैक्ट होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जी m1, m1 तो m ही है, m2 मेरा 1 kg है, अपॉन में r², तो इट इज इक्वल टू gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज gm/r², ठीक है। तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास। है ये फोर्स ही, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी लिखी है। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास when placed in the gravitational field of another mass. It is the force experienced by test mass when placed in the gravitational field of
another mass when placed in the gravitational field of another mass। मतलब अगर आपको किसी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे निकालनी है तो आप वहां पर 1 kg का मास अज्यूम कर लीजिए, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? जीएम बाय आर स्क्वायर। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, स्मॉल जी भी है ना। तो इसकी एक एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगी। इसकी एक एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगी एक्सलरेशन वाली। दिस फॉर्मूला इज रेम्बलिंग विद द स्मॉल जी जीएम बाय आर स्क्वायर, पर वहां पर फिक्स है कि आर जो रेडियस होता है। ठीक है, यहां पर स्मॉल आर क्या है? मास और 1 kg की दूरी। इट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेकिन कितने केजी चार्ज पर? 1 kg चार्ज पर, तो न्यूटन पर केजी। इसकी एक और यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी। एक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक है बच्चे न्यूटन पर केजी। Let's do a question on the gravitational field intensity. Suppose it is an equilateral triangle. Oh, right angle triangle. This is 3 meter, 4 meter, and this is the 90-degree angle. Here is mass m, here is mass 2m, है ना। Find gravitational field intensity at point P. Find gravitational field intensity at point P. तो बच्चे होगा क्या? जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर आप 1 kg का चार्ज अज्यूम कर लीजिए, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। टेस्ट में अज्यूम कर लीजिए, दिस द, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईपीए? जी एम बाय 3 का स्क्वायर, जी एम जी 2m बाय, ये कितने 4 से खींचेगा? जी 2m बाय 4 का स्क्वायर, मतलब 2gm बाय 16। और ये था बच्चे gm बाय 9, ये था gm बाय 8 आ गया। ठीक है, एक आ गया आपका gm बाय 9 और एक आ गया आपका gm बाय 8। ये फॉर्मूला gm बाय आर स्क्वायर है ना, तो एक का आ गया gm बाय 9 और एक का आ गया gm बाय 8। बाकी तो हमने वेक्टर की तरफ सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली अब आपके पास दो वेक्टर हो गए ऐसे। ठीक है, एक हो गया gm बाय 9, ये इवन मान लीजिए, है ना, और एक हो गया gm बाय 8। इन्हें वेक्टर की तरफ सॉल्व कर लीजिए। यहां पर इसका नेट आ जाएगा अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 जीरो होता है, तो अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ज्यादा है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए इसको ए, इसको बी, इसको क्या मान लीजिए? अल्फा। जिसके साथ अल्फा एंगल बनता है उसको हम ए मानना होता है ना, क्योंकि tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था हमारा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 था। ठीक है, यानी कि बी कौन है यहाँ पर? E1 साइन 90 अपॉन में ए कौन है? E2 प्लस E1 cos 90। cos 90 जीरो, E1 बाई E2, tan अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स E1 बाई E2। E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देना। E1 और E2